Good morning, children. We are doing chapter electricity. We have studied different parts in that chapter. Just to tell you the revision or to do the revision, I'll tell you that what is the current? Flow of electricity is known as current. When we say that light चली गई, current चला गया, it means that the electricity stops flowing through the circuit. When the electricity stops flowing through the circuit, we say current has gone, light चली गई. This electricity is the flow of electron, that is I said. Now, when this electricity flows, we use this electricity for the different purposes. That is true, we have studied, I explained you. In this chapter, we have studied the circuit diagram, then circuit of a torch, that also we have studied. Then resistance. Resistance means the hindrance created in the path of the electricity. Hindrance created in the path of the flow of electricity, that is the resistance. When this resistance is created, it affects the current. When there is a resistance in the path of the flowing of electricity, flow of electricity, it affects the current. How it affect the current? इसका करंट के ऊपर क्या असर होता है? यदि बीच में रुकावट है, हिंडरेंस है, तो इसका असर कैसे होता है? और फिर ये हिंडरेंस ना हो, to avoid this hindrance, what we can do? What we have to do? Because if there is a hindrance, then definitely it will affect the flow of current. And if it affect the flow of current, again it will affect the working machineries. So, how does it affect? Then we have studied lower resistance. Means if there is a less hindrance in the path of the electricity, if there is a less hindrance in the path of electricity, then greater is the current. उतना ही करंट ज़्यादा फ्लो होगा. Lower is the resistance, greater is the current flow through the circuit. Then, if the wire is thin and long, the wire which we are using for the purpose for the flow of electricity, that wire, if that wire, we know that that wire is the good conductor of electricity, that is why it allows the current to pass through it. If this wire is thin and long, यदि वो वायर पतला होगा और लंबा होगा, then resistance will be high. There will be high resistance. यदि वायर पतला होगा और लंबा होगा, then resistance will be high. And if the wire is thick and short, मतलब वायर यदि मोटा है और छोटा है, short है और thick है, then the resistance will be low. Thin and long wire, then resistance will be high. Thick and short wire, resistance will be low. After that, we have studied the heating effect of current. When this current flows to the circuit, then it produces the heat. When it produces the heat, then we uses this heat in different appliances, different machineries we use the heat. So we have studied the heating effect of current. Heating effect of current मतलब when the current flows to the circuit, when the electricity flows to the circuit, it produces heat. And when this heat is produces, how we can utilize this heat for the different purposes? Because we cannot waste this heat as it is. ऐसे ही इसको हम बर्बाद नहीं कर सकते. यदि इसका हम यूज कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है. यदि करंट फ्लो हो रहा है, हाई रेजिस्टेंस हाई करंट फ्लो हो रहा है कभी, तो यदि उसका हम यूज नहीं करेंगे तो ये हीट तो ऐसी बर्बाद हो गई ना. So we use the heating effect of current. अब हमारे घर में जो गीज़र है, माइक्रोवेव है, टोस्टर है, प्रेस है जिससे कपड़ों को प्रेस करते हैं, इसमें सब में हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. When the current flows, it produces the heat and we use this heat for the different purposes. माइक्रोवेव में जब उसकी ग्रिल गर्म हो जाती है, गर्म होने के बाद में हीट प्रोड्यूस होती है, उस हीट को यूज़ करके हम जो है उसके अंदर अलग अलग प्रकार का खाना बनाते हैं. उसमें हम केक बनाते हैं, उसमें हम ब्रेड से पकौड़े, जो भी हमको बनाना है हम उसमें बनाते हैं. या टोस्टर में हम जो है ब्रेड को आराम से सेक कर सकते हैं क्योंकि वो ग्रिल गर्म हो जाती है उसका हम यूज़ करते हैं. आयरन जो हमारी प्रेस है, प्रेस के अंदर भी जो मेटल हमने यूज़ किया है, व्हेन इट गेट्स हीटेड,
बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ हाई करंट। जब उसमें करंट फ्लो होता है और वो जब गर्म हो जाता है तो वो गर्म होने से हम हमारे कपड़ों को प्रेस करते हैं। हमारे घर में गीजर होता है, गीजर होता है व्हेन द हाई करंट फ्लोज थ्रू दैट वायर इट प्रोड्यूसेस द हीट, और ये हीट क्या करती है, अवर वाटर यूजेस दैट अवर वाटर गेट्स हीटेड, हमारा पानी जो है गर्म हो जाता है और हमको तुरंत जैसे हम टैप को ऑन करते हैं विद इन ए मिनट वी गेट द हॉट वाटर, गर्म पानी हमको मिलता है। तो वी यूज दिस हीट फॉर द डिफरेंट पर्पजेस, दिस इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब ये जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट होता है, जब हीट प्रोड्यूस होती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूजेस दिस हीट, अधिकतर तो हम हीट को यूज कर लेते हैं, हम उसको यूज कर लेते हैं, उसको यूज करते हैं माइक्रोवेव के रूप में, हम उसको माइक्रोवेव को ऑन करते हैं, उसमें हम कुछ को यूज करते हैं, प्रेस करते हैं कपड़ों को, उसमें उसको हम यूज करते हैं, गीजर में हम यूज करते हैं, टोस्टर में हम यूज करते हैं, अलग अलग अप्लायंसेस के माध्यम से हम जो ये हीट प्रोड्यूस हुई है उसको हम यूज करते हैं। जब इस हीट को हम यूज करते हैं तो कई बार ऐसे भी होता है कि ये हीट जो है ऐसे ही बर्बाद हो जाती, कई बार ऐसे होता है, और कई बार तो होता है कि इसके कारण डिसएडवांटेजेस भी है। यदि ये हमने देखा है साइंस में, हमेशा हमने देखा है जितना ज़्यादा उसका अच्छा यूज होगा उतना ही उसका डिसएडवांटेज भी होगा, और उसका हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। तो हमें उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट तो हमारे लिए बहुत यूजफुल है, हम डिफरेंट अप्लायंसेस को यूज करते, मशीनरीज को यूज करते, इस हीट को यूज कर लेते हैं। पर डिसएडवांटेजेस में क्या होता है, कई बार ऐसा होता है व्हेन द हाई करंट फ्लोज थ्रू इट, व्हेन द हीट इज प्रोड्यूस, ये हीट जो है ऐसे ही इट गेट्स वेस्टेड, वो वैसे ही वेस्ट हो जाती है। अब ये हीट वेस्ट ना हो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें काम तो करना है, मशीनरीज को हमको यूज तो करना है, पर इसके साथ साथ हमारी हीट जो है बर्बाद नहीं होना चाहिए। तो उस केस में हम क्या करते हैं, अभी हमने देखा है यहाँ पर कि थिक एंड शॉर्ट वायर लो रेजिस्टेंस, और यदि लो रेजिस्टेंस होगा तो हीट कम प्रोड्यूस होगी, हायर रेजिस्टेंस होगा तो हीट भी ज्यादा होगी, लो रेजिस्टेंस होगा तो लो हीट होगी। तो लो रेजिस्टेंस से लो हीट होगी, तो लो रेजिस्टेंस कब होगा, जब हम वायर कैसा लेंगे, थिक और शॉर्ट। स्टूडेंट्स आपने देखा होगा आपके घर में यदि प्रेस है, रेफ्रिजरेटर है आपके घर में, तो कुछ अप्लायंसेस में टीवी की वायर है, आपने देखा होगा कि वायर मोटी होती है। तो ये वायर मोटी क्यों यूज करते हैं, जस्ट नो आई टोल्ड यू कि थिक एंड शॉर्ट वायर इट हैज द लो रेजिस्टेंस, and if the resistance is low less heat will be produced, और यदि हीट लेस प्रोड्यूस होगी तो हीट जो है वेस्ट नहीं होगी। तो मेनी ऑफ द एडवांटेज टू अवॉइड द वेस्टेज ऑफ हीट हम क्या करते हैं, वी यूजेस थिक वायर सो दैट देयर इज नो वेस्ट ऑफ हीट, कि हमारे हमने जो हीट प्रोड्यूस हुई है वो वेस्ट ना हो। इसलिए टीवी की डिवाइसेस जितने भी, टीवी है, आयरन है, रेफ्रिजरेटर है, इसकी वायर कैसी होती है, मोटी होती है इसकी वायर, और इसके कारण जो है जो भी हीट प्रोड्यूस होती है उसका वेस्टेज नहीं होता है। सो टू प्रिवेंट ओवर हीटिंग थिक वायर्स आर यूज्ड टू कैरी लार्ज करंट्स, दैट इज व्हाई द वायर्स ऑफ अ फ्रिज, हीटर और आयरन आर थिकर, इसलिए उनकी वायर कैसी होती है, थिक होती है। अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में मैंने एक और चीज लिखी है यहाँ पर कि ग्रेटर द करंट ग्रेटर इज द हीट, जितना करंट ज्यादा होगा उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, और जितना कम करंट फ्लो होगा उतनी कम हीट प्रोड्यूस होगी। माय डियर चिल्ड्रन, ये जो सारी चीजें हैं, ये चीजें आपको बहुत ध्यान से सुनना है और ध्यान से इसको याद भी रखना है, टू लर्न इट, आपको याद रखना है, नहीं तो आपको जरा सी चीज में कुछ भी कंफ्यूजन हो सकता है। आप गड़बड़ा सकते हैं कि लो रेजिस्टेंस होगा तो करंट कैसा होगा, कम होगा कि ज्यादा होगा। तो यू हैव टू लर्न दिस कि इफ द रेजिस्टेंस इज लो greater is the current, thin and long wire high resistance, short and thick wire low resistance, high resistance greater heat, low resistance low heat, greater is the current greater is the heat, and lower is the current lower is the heat. So just to avoid the disadvantages of this, we uses the thick wire in most of the devices. Now students, the next part is the ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट। आपने सुना होता कई बार होता है कि लाइट एकदम से चली जाती है, हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट हुआ होगा शायद, या ओवरलोड का मतलब, लोड का मतलब तो आपको पता है, लोड मतलब कि बहुत ज़्यादा, जैसे हम जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं ना, बहुत लोड हो गया है काम का, बहुत ही ज़्यादा काम है, सच में लोड। ओवर मतलब ज़्यादा,
जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल है, यदि आपको 1 या 2 काम करने हैं तो आप बड़े इजीली आराम से बिना टेंशन के वो काम करेंगे। पर यदि आपको सारे की सारे 8-10 काम करने को कर दिया जाए तो आपको समझ नहीं आएगा कि ये करे कि ये करे कि ये करे कि ये करे, और कोई भी काम आपका ठीक से नहीं होगा। तो क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके ऊपर इतना ज़्यादा लोड आ गया काम का कि यू आर नॉट एबल टू डू इट, मतलब यू आर ओवरलोडेड। आपकी कैपेसिटी जितनी है उससे ज़्यादा आपके पास में काम आ गया, उससे ज़्यादा आपको काम मिल गया करने के लिए, तो यू आर अनेबल टू डू इट। Sometimes it happens that when we are overloaded, when we have lot of work to do in a given time, then we are overloaded and it is difficult for us to perform the work, to do the work. ये एक जनरल कंडीशन हुई। पर इलेक्ट्रिसिटी के केस में भी ओवरलोड होता है। इलेक्ट्रिसिटी के केस में ओवरलोड कैसे होता है? आपने देखा होगा कि हमारे घर में जब बाहर से अंदर लाइट आ रही है, वहाँ से ऐसा नहीं है कि हमारे घर में ओनली वी आर यूजिंग द ट्यूबलाइट एंड फैन एंड रेफ्रिजरेटर, नहीं, कितने सारे अप्लायंसेस हमारे घर में काम करते हैं। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कितने सारे हैं हमारे घर में, फैन, ट्यूबलाइट, आयरन वी आर यूजिंग, रेफ्रिजरेटर इज देयर, कूलर इज देयर, माइक्रोवेव इज देयर, टोस्टर इज देयर, इन्वर्टर भी है ही कि लाइट चली जाए तो उसके बाद भी घर में अंधेरा नहीं होना चाहिए, हवा मिलती रहनी चाहिए, तो वो इन्वर्टर भी है, भाई वो भी तो काम करेगा इलेक्ट्रिसिटी जाने के बाद में, तो उसको भी तो फिर करंट लगेगा। फिर इसके अलावा भी कई सारे अप्लायंसेस हमारे घर में हैं, और इन सबको जो है इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिल रही है? वो वहीं से मेन पावर से, जहाँ से हमारे घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। तो कई बार ऐसा होता है कि जो ओवरलोड वाली जो कंडीशन है, मतलब कि जो फ्लो ऑफ करंट उसमें से जाता है और जब उसके साथ में बहुत सारे डिवाइसेस जुड़े हुए रहते हैं, तो करंट जो है इट हैज टू गिव, करंट हैज टू बी पास टू द माइक्रोवेव, it has to pass to the fan, it has to pass to, so everywhere this current is needed for the working of the appliances। और उस केस में क्या होता है कि उस डिवाइस की जितनी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी से ज़्यादा यदि करंट उस लाइन में फ्लो हो रहा है, क्योंकि वो फ्लो होना ज़रूरी है, तभी तो सारे इंस्ट्रूमेंट एक साथ आपके घर में काम करेंगे, और ये सारे इंस्ट्रूमेंट जब एक साथ काम करेंगे तो उस समय कभी कभी जो है करंट एक्सीड्स इस लिमिट, उसकी लिमिट ज़्यादा हो जाती है, और उसके कारण जो है द कंडीशन इज द ओवरलोड। कौन सी कंडीशन बनती है? ओवरलोड। सो स्टूडेंट्स, when there are more than 2-3 appliances are there connected in a path, then there is the condition of an overload on the wire, and overload causes excessive heating that can damage the insulation। अब यदि वायर में बहुत ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि माइक्रोवेव भी यूज़ कर रहे हैं हम, गीज़र भी यूज़ कर रहे हैं, हमारे टीवी भी चल रहा है, हीटर भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, तो इनको सबको करंट लगेगा। जब एक साथ इतना सारा करंट यदि वायर में से फ्लो होगा तो वायर की जितनी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा यदि करंट उसमें फ्लो होगा तो वायर जो क्या हो जाएगा, इट विल गेट हीटेड, वो इतना ज़्यादा गर्म हो जाएगा कि इट विल गेट डैमेज। और यदि ये वायर जल गया, ये वायरिंग जल जाती है, ये डैमेज हो जाता है, तो डेफिनेटली इट विल डैमेज अवर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, ये हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को भी क्या करेगा? डैमेज कर देगा। तो कभी कभी ये ओवरलोड की कंडीशन से हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो है घर में, वो सारे क्या हो जाता है? डैमेज हो जाते हैं। एंड ओवरलोड कॉजेज एक्सेसिव हीटिंग दैट कैन डैमेज द इंसुलेशन ऑफ वायर एंड स्टार्ट फायर। क्योंकि वायर जो है, हम जो वायर बोलते हैं उसमें अंदर जो है कॉपर का वायर है, उसके ऊपर इंसुलेटर होता है, मतलब जो उसके ऊपर का जो कवरिंग है वो इंसुलेटर है। इंसुलेटर मतलब इट डज नॉट अलाउ द हीट टू पास आउट, है ना, उसको हम हाथ लगाते हैं हमको करंट नहीं लगता है। पर यदि उस कॉपर की वायर में से इतना ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है कि बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है कि उस इंसुलेटर वायर का जो मेल्टिंग है, मेल्टिंग पॉइंट, उससे वो एक्सीड हो जाता है, तो वायर जल जाता है। और यदि वो वायर जल गया, उसके बाहर का इंसुलेशन, तो इट विल डैमेज द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस एंड दैट इज व्हाई इट कैन स्टार्ट फायर। आग भी लग सकती है, ओवरलोड की कंडीशन में आग भी लग सकती है। सो ओवरलोड मतलब क्या है कि व्हेन द मोर डिवाइसेस आर कनेक्टेड इन द लाइन एंड व्हेन द हाई करंट फ्लो थ्रू इट, व्हेन इट एक्सीड्स दिस लिमिट, देन दिस कॉपर वायर विच इज इनसाइड, इट गेट्स हीटेड एंड द इंसुलेटर वायर, इंसुलेटर कवरिंग, उसका जो कवरिंग है बाहर का, वो भी गर्म हो जाता है एंड इट मेल्ट्स एंड इट मे कॉज द फायर एंड दिस इज द ओवरलोड। अब एक और चीज आपने सुनी है, शॉर्ट सर्किट।
बैठे बैठे यदि ऐसे ही कुछ नहीं, कहीं किसी और के घर की लाइट नहीं गई और हमारे घर की लाइट चली जाती है, हम जैसे ही हमारे घर की लाइट जाती है हम सबसे पहले तो बाहर देखते हैं सबके दूसरों के घर पे लाइट गई है या नहीं, और यदि हमको ऐसा दिख गया तो हम बोलेंगे शॉर्ट सर्किट हो गया, शायद क्या फ्यूज उड़ गया होगा, ये हो गया होगा, वो हम सारी अटकलें लगाते हैं। तो द नेक्स्ट पार्ट इज द शॉर्ट सर्किट। अब शॉर्ट सर्किट मतलब a short circuit is a direct low resistance connection between two points across which there is a voltage। तो दो पॉइंट के बीच में जहां पर करंट फ्लो हो रहा है वहां पर एक वायर यूज किया जाता है, एक वायर से जोड़ा जाता है उसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। ये शॉर्ट सर्किट क्या करता है, दिस फॉर द शॉर्ट सर्किट विच टाइप ऑफ वायर वी यूज, जिसका मेल्टिंग पॉइंट एकदम कम होता है। मेल्टिंग पॉइंट कम होता है वो वायर हम क्यों यूज़ करते हैं, जैसे अभी हमने देखा था कि बहुत ज़्यादा करंट जब फ्लो होता है तो उसके कारण इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी कि जो इंसुलेटर कवरिंग है वायर के बाहर का वो भी जल जाता है, वो मेल्ट हो जाता है, वो जल जाता है और आग भी लग सकती है। तो यदि कई बार हाई वोल्टेज करंट पासेस, यदि हाई वोल्टेज करंट हमारे घर में यदि मेन पावर लाइन से हमारे घर में आ जाता है तो ये हाई पावर करंट के आने से यदि इसको कंट्रोल नहीं किया गया एंट्री के वहाँ पर, तो ये हाई वोल्टेज करंट यदि बहेगा पूरे सर्किट में से तो जितने भी अप्लायंसेस है उनकी कैपेसिटी से ज़्यादा यदि उस वायर में करंट फ्लो होगा तो दिस अप्लायंसेस वी गेट डैमेज तक तो ठीक है कि चलो ठीक है भाई कोई चीज़ बिगड़ गई है उसको सुधार लेंगे, पर उसके कारण आग भी लग सकती है, उसके कारण कुछ भी हो सकता है। सो टू अवॉइड इट हम क्या करते हैं, जब हाई वोल्टेज करंट हमारे घर में जहाँ पर आ रहा है वहाँ पर हम एक ऐसा वायर, दो पॉइंट के बीच में ऐसा वायर यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट, कि वहाँ पर वो क्या है, जब उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है कम, जब हाई वोल्टेज करंट आता है तो ये वायर जो है वहीं के वहीं क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। जैसे ही ये वायर मेल्ट हो जाएगा कनेक्शन इसके अंदर का क्या हो जाएगा, जैसे हमारे ऑन ऑफ स्विच में होता है कि नहीं, हम ऑफ करते हैं स्विच को मतलब सर्किट पूरा होता नहीं है, तो यहाँ पर जैसे ही वायर जल जाएगा कनेक्शन टूट जाएगा और ये हाई वोल्टेज का करंट हमारे घर के अंदर वायरिंग में फ्लो नहीं होगा। तो यदि फ्लो नहीं होगा तो हमारे घर पर फ्यूज उड़ने का, या हम जो बोलते हैं कि हमारे घर में वायरिंग जल जाएगी या कुछ हो जाएगा, ऐसा इस जो है डैमेज से हम, इस डेंजर से हम बच जाते हैं। तो दिस शॉर्ट सर्किट, it is a short circuit is a direct low resistance connection between two points across which there is a voltage. अब for two wires whose insulation have worn off can touch and cause a short circuit. A short circuit in wires connected to the mains can be dangerous. The high voltage of mains produces a greater current that produces the shorting of the cell, so that heat produces greater can start fire. और इसीलिए हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं, यहाँ पर ऐसा ना हो इसलिए हम फ्यूज का वायर यूज करते हैं, शॉर्ट सर्किट ना हो, है ना। जब ऐसा होगा करंट जब ज़्यादा फ्लो हो जाएगा तो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, उसके कारण अप्लायंसेस जो है हमारे खराब भी हो सकते हैं वहीं के वहीं। तो ऐसा ना हो इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, फ्यूज़। ये जो वायर हम यहाँ पर फ्यूज का वायर जो यूज़ करते हैं, ये फ्यूज का वायर एक ऐसे मेटल का बना हुआ रहता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट होता है लो। कैसा होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट, लो। फ्यूज के लिए हम एक स्पेशल वायर यूज करते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, कम होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा मतलब क्या होगा, जैसे ही अंदर हमारे घर में हाई वोल्टेज करंट आएगा तो वहां पर जो है ये वायर जो है, जैसे ही हाई वोल्टेज करंट आएगा ये वायर क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या है, कम है। ये वायर यदि मेल्ट हो जाएगा तो करंट जो है हाई वोल्टेज का करंट इट विल नॉट एंटर इनसाइड, और यदि ये वायर अंदर नहीं आया तो हमारे अंदर की जो वायरिंग है पूरी बच जाएगी, हमारे यहाँ के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस भी बच जाएंगे, इट विल नॉट गेट डैमेज। तो चिल्ड्रन, सिंस ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट मतलब दो टर्मिनल के वहां पर हमने एक ऐसा वायर जोड़ दिया, शॉर्ट सर्किट है। अब यहाँ पर जो है शॉर्ट सर्किट वाले केस में क्या होता है कि अ शॉर्ट सर्किट इन वायर्स कनेक्टेड टू द मेन्स कैन बी डेंजरस। The high voltage of the mains produce a greater current. High voltage it can produce a greater current. और जब ज़्यादा करंट हो जाएगा तो क्या होगा, ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, और यदि ज़्यादा हीट प्रोड्यूस क्या होगी तो क्या होगा, इसके कारण कुछ भी डैमेज हो सकता है। The heat produces greater and can start a fire. अभी हमने देखा। तो यदि यहाँ पर ऐसी कंडीशन हुई, शॉर्ट सर्किट हुआ तो आग भी लग सकती है, और ये कंडीशन ना हो इसलिए हम क्या यूज करते हैं, फ्यूज वायर यूज सकते हैं। ये फ्यूज का वायर जब हम यूज करते हैं तो इसको यूज करने से व्हेन द हाई वोल्टेज करंट फ्लो थ्रू द सर्किट देन दिस वायर गेट्स मेल्टेड।
क्योंकि ये वायर हम जो स्पेशल वायर यूज करते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होने के कारण क्या होगा, ये मेल्ट हो जाएगी, और जब ये मेल्ट हो जाएगी तो कनेक्शन बंद हो जाएगा और अंदर के हमारी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जितने भी है वो सारे डैमेज होने से बच जाएंगे। सो फ्यूज का मतलब क्या है, अ फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस दैट ओपन्स एन इलेक्ट्रिक सर्किट व्हेन एक्सेसिव करंट फ्लोज थ्रू। तो जब हाई वोल्टेज करंट फ्लो होता है तो उस समय ये फ्यूज का वायर जल जाता है, मेल्ट हो जाता है और कनेक्शन ब्रेक कर देता है। और जब ये कनेक्शन को ब्रेक कर देगा तो अंदर करंट फ्लो नहीं होगा, हाई वोल्टेज करंट यदि फ्लो नहीं होगा तो अंदर के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस डैमेज नहीं होंगे। इसलिए द फ्यूज इज देयर वेयर वी यूज द स्पेशल वायर whose melting point is very less. It gets melted when the high voltage current passes through it and it saves the electrical appliances at our home. अब यूजिंग हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में हम जैसे बल्ब का यूज करते हैं या आयरन का यूज करते हैं, जैसे मैंने आपको बोला था हीट प्रोड्यूस होती है उसका हम यूज करते हैं। यहाँ पर जो है बल्ब में आपने यदि बल्ब का स्ट्रक्चर देखा होगा तो उसमें आपको जैसे आप बल्ब को देखेंगे अंदर के साइड में ऐसे तार आपको ऐसा हिलता हुआ दिखता है, दैट इज द फिलामेंट। ये जो बल्ब का जो फिलामेंट है ये टंगस्टन का होता है। टंगस्टन इट इज द नेम ऑफ द मेटल। ये टंगस्टन जो है ये मेटल का नाम है। तो ये जो मेटल है टंगस्टन, ये जो है इट गेट्स हीटेड एंड व्हेन इट गेट्स हीटेड इट गिव्स आउट द लाइट। ये क्या देता है, हमको लाइट देता है। और हम जो आयरन यूज करते हैं, जो हम प्रेस यूज करते हैं, उसके अंदर जो हम एलिमेंट यूज करते हैं दैट इज द नाइक्रोम। देखिए बल्ब में जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना हुआ रहता है। ये टंगस्टन का फिलामेंट जो है ये जब गर्म हो जाता है इट गिव्स आउट हीट, और जो हीट देता है वी यूजेस दिस हीट, लाइट ऑल्सो वी यूज। एंड जो आयरन है, जो प्रेस कपड़ों की प्रेस हम करते हैं, उसका जो है उसका जो एलिमेंट है वो कौन सा होता है, वो नाइक्रोम होता है। हीटर, आयरन, टोस्टर, इसमें जो भी ग्रिल होती है लोहे की, हम बोलते हैं ग्रिल होती है मेटल की, इट इज ऑफ नाइक्रोम। काय की होती है ये, नाइक्रोम की होती है। द एलिमेंट गेट्स वेरी हॉट व्हेन अ करंट फ्लो इज इट। जब इसमें से करंट फ्लो होता है तो बहुत गर्म हो जाती है और उस गर्मी से हम जो है हमारा खाना पकाते हैं। तो द फिलामेंट हैज ए हायर रेजिस्टेंस देन ऑर्डिनरी वायर। हम फिलामेंट के लिए टंगस्टन का वायर ही क्यों यूज करते हैं, ऑर्डिनरी वायर हम क्यों यूज नहीं करते हैं, क्योंकि इसका जो है रेजिस्टेंस क्या होता है, इसमें ज्यादा होता है। इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होने से करंट भी अच्छा, हीट भी अच्छा हो जाती है, और जब हीट अच्छा हो जाता है तो इट गिव्स अस लाइट एंड हीट बोथ। और हीटर, आयरन और टोस्टर के केस में हम क्या यूज करते हैं, जो मेटल एलिमेंट यूज किया दैट इज द नाइक्रोम। और इस नाइक्रोम का यूज करते हैं क्योंकि ये भी करंट फ्लो होने से अच्छा हीट गर्म हो जाता है, और गर्म हो जाने से जो है ये क्या करता है, हमें वी कैन यूज इट वेरी नाइसली। सो चिल्ड्रन, दिस इज अबाउट द रेजिस्टेंस, हाउ रेजिस्टेंस, करंट, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन ईच अदर। देन कंडीशन ऑफ ओवरलोड, देन शॉर्ट सर्किट, और ये शॉर्ट सर्किट से कैसे आग लग जाती है, और ये आग न लगे, शॉर्ट सर्किट के कारण आग न लगे, हमारे अंदर कुछ डैमेज, हमारे घर के अंदर कुछ डैमेज ना हो, ये सब कुछ ना हो, इसके लिए हम फ्यूज यूज करते हैं, फ्यूज का वायर यूज करते हैं। और हम जो है फ्यूज के लिए, वायर के लिए एक स्पेशल वायर का यूज करते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। What does it do? Just it switch off the circuit, एक ऑफ द सर्किट, सर्किट को ऑफ कर देता है, करंट को वही रोक लेता है, मेल्ट हो जाता है और हमारे घर में लगने वाली आग को बचा लेता है। फिर बल्ब में जो वायर होता है, फिलामेंट होता है, वो टंगस्टन का बना हुआ रहता है, ये भी हाई रेजिस्टेंस वाला होता है, इससे हमें अच्छी हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है। और जो नाइक्रोम एलिमेंट है वो हम यूज करते हैं हीटर, आयरन और टोस्टर के लिए, क्योंकि ये भी इसको जैसे ही मिलती है हीट, जैसे ही मिलती है इसको, करंट जैसे ही फ्लो होता है इसको हीट मिलती रही, अच्छे से गर्म हो जाता है। तो चिल्ड्रन, दिस इज अबाउट दिस डिफरेंट, दिस इज दिस पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। यस चिल्ड्रन, नाउ द नेक्स्ट पार्ट व्हाट वी विल स्टडी, दैट इज द, अभी जैसे हमने पहले पढ़ा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, कि व्हेन द करंट फ्लोज द हीट इज प्रोड्यूस्ड एंड वी यूज दिस हीट इन डिफरेंट अप्लायंसेस, वी यूजेस द डिफरेंट अप्लायंसेस, दैट इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। द अनदर वन इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अब इसमें जो वर्ड है मैग्नेट, ये आपने वर्ड सुना है, चुंबक जिसको आप हिंदी में बोलते हैं, और आपको पता है कि ये मैग्नेट जो है, ये चुंबक जो है, इसकी क्या प्रॉपर्टी है कि इसको जब हम लोहे की चीज़ों के पास में लेकर जाते हैं तो इट अट्रैक्ट्स, इट गेट अट्रैक्टेड। मतलब इफ़ यू हैव द ऑल पिन्स
and you if you have the magnet, तो ये मैग्नेट इफ वी ब्रॉट दिस मैग्नेट नियर द ऑल द ऑलपिन्स विल बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द मैग्नेट। अब यदि आपको करके देखना है तो आप करके देख सकते हैं। यू कैन हैव द ऑलपिन्स, यू कैन हैव द प्लास्टिक मेड थिंग्स, यू कैन हैव द पेपर मेड थिंग्स एंड जस्ट ब्रिंग द मैग्नेट नियर दिस डिफरेंट थिंग्स एंड यू विल सी दैट things made of paper, things made of plastic, they will not get attracted towards the magnet, but the olpins will be attracted towards the magnet। ये olpins को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। olpin काय की बनी हुई है? लोहे की बनी हुई है। तो अधिकतर मेटेलिक चीज़ों को जो है ये मैग्नेट क्या करता है? अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में ये है कि जब करंट व्हेन द करंट passes through these things which are made up of metals, then it create a magnetic effect। it create a magnetic effect मतलब that metallic thing will behave like a magnet। मैग्नेट आपके पास में, वो मैग्नेट तो लोहे की चीज़ों को अट्रैक्ट करेगा, पर उसमें भी यदि आपकी कोई लोहे की कील है, इफ़ यू हैव द आयरन नेल and if just you make a circuit and in that circuit if you have the on off switch, if you have the cell, if you use this nail in between the circuit, then it will behave like a magnet। ये जो है मैग्नेट जैसा बिहेव करेगा। मतलब when the current will flow through it, when the electricity will flow through it, these metallic things will act like a magnet। तो this is the electromagnet। A length of wire wound close together is called a coil। और ये जब इसके थ्रू जब हम वायर करंट को फ्लो करते हैं देन इट बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट। अ करंट कैरिंग कॉइल ऑल्सो बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट। तो वो भी एक प्रकार से मैग्नेट का काम करेगी। वो मैग्नेट है नहीं, पर उसमें से जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी तो इट विल बिहेव लाइक ए मैग्नेट। अब उसके लिए आपकी बुक में 2-3 एक्टिविटी दी हुई है। चिल्ड्रन यू कैन रीड दैट एक्टिविटीज एंड यू कैन डू इट। द आयरन यूज इन नेल्स इज कॉल्ड ए सॉफ्ट आयरन। जो कील होती, लोहे की कील है, उसमें जो लोहा यूज होता है वो सॉफ्ट होता है, क्योंकि हेवी काम उससे करना नहीं। जब हेवी हमें कुछ हेवी काम करना है तो उस समय जो लोहा यूज़ करेंगे वो हैवी ड्यूटी वाला मतलब वजनदार जो है यूज़ करेंगे। यहाँ पर जो है जो नेल्स है, जो किल्लियाँ हैं जिसको ठोकते हैं हम, है ना, वो किल्ली में जो आयरन यूज होता है इट इज अ सॉफ्ट आयरन। तो इट इज अ सॉफ्ट, सिंस इट इज सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, तो ये कैसा होगा? सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, इससे सॉफ्ट मैग्नेट बनेंगे। सच मटेरियल्स बिहेव एज ए मैग्नेट एज लॉन्ग एज दे आर नियर अनदर मैग्नेट like a current carrying coil, they lose their magnetism once the magnet is removed। तो ये जो सॉफ्ट जो हमारी कॉइल है उसमें सब करंट जब फ्लो करेंगे तो वो जो इट विल बिहेव लाइक ए मैग्नेट। मैग्नेट जैसा बिहेव वो तब तक करेगी जब तक इसमें से करंट फ्लो होगा। जैसे ही करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, ये जो है इसकी प्रॉपर्टी, मैग्नेट वाली प्रॉपर्टी उसमें नहीं रहेगी। तो दिस सॉफ्ट आयरन बिहेव लाइक अ मैग्नेट व्हेन द करंट पासेस थ्रू इट। A magnet produced by passing an electric current through a coil wound around a soft iron। तो लोहे के चारों तरफ आपने यदि वायर को कॉइल कर दिया है, ऐसा पूरा लपेट दिया है, और फिर यदि करंट आप उसमें से पास करते हैं तो दैट विल बिहेव लाइक ए मैग्नेट। फिर वही है, वो जब तक बिहेव करेगा तब तक कि इसमें करंट फ्लो होता रहेगा। भैया आपने पूरा सर्किट बनाया है, यहाँ पर लोहे की कील रही है, उसके ऊपर अपने वायर को लपेट दिया है। अब ये जो है आयरन कोर जो सॉफ्ट आयरन जो है वो तब तक बिहेव, इट विल बिहेव लाइक ए मैग्नेट टिल द करंट फ्लोज थ्रू इट। जैसे ही करंट पास करना आपने बंद कर दिया, ये इसका जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाएगा। इट विल नॉट नो मोर बी अ मैग्नेट, वो और अधिक मैग्नेट नहीं रहेगा जब तक करंट फ्लो होगा तब तक, क्योंकि लोहे के चारों तरफ हमने जो कॉइल उसको किया है, वायर को पूरा लपेट दिया है, जब तक करंट फ्लो होगा दैट सॉफ्ट आयरन विल बिहेव लाइक ए मैग्नेट। और जैसे ही हमने करंट फ्लो करना बंद कर दिया है इट विल नॉट बिहेव लाइक ए मैग्नेट, और इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट क्यों बोलते हैं? मैग्नेट मतलब इट विल अट्रैक्ट द थिंग्स, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी। तो दिस मैग्नेटिज्म इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दिस सॉफ्ट आयरन इज बिहेविंग लाइक ए मैग्नेट बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी इज प्रोड्यूस्ड, it is behaving like a magnet because of the flow of current, because of the flow of the electricity, that is why it is a electromagnet। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट। So a magnet produced by passing an electric current through a coil wound around a soft iron। soft iron के चारों तरफ जो हमने coil लपेटी है, and when the current is passed through it,
It will behave like a magnet till the electricity passes through it. And dear students, when the magnetism property is caused due to the flow of electricity, the soft iron will behave like a magnet because of electricity, because of flow of electricity. So it is a electromagnet. हम उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेट. अभी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की जो प्रॉपर्टी है, इसका कई जगह पर यूज़ किया जाता है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी का कई जगह पर यूज़ करते हैं. We will do the activity also, you can do at home also. Very simple activities are you can do at home. But the two things, an electromagnet strength depends on the number of turns of wire and the amount of current passing through it. मतलब आपने यदि कोई सॉफ्ट आयरन लिया है और उसके चारों तरफ वायर को कॉइल कर दिया है, तो ये वायर का जो वाउंड आपने किया है कॉइल, इसकी जितने ज़्यादा वो वायर उसके चारों तरफ वुंडेड रहेगा, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी उसमें रहेगी. यदि आपने एक लोहे सॉफ्ट आयरन लेके सिर्फ 2-3 बार उसको कॉइल किया है, तो उसमें उतना मैग्नेटिज्म नहीं होगा. उसको आप जितना ज़्यादा कॉइल करेंगे वायर को, जितना ज़्यादा उसको लपेटेंगे, उतना ज़्यादा मैग्नेटिज्म उस सॉफ्ट आयरन में प्रोड्यूस होगा. तो जितना ज़्यादा आपका वाइंडिंग होगा वायर का, उतना ज़्यादा मैग्नेटिज्म उसमें प्रोड्यूस होगा. और दूसरी चीज़, जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा, उतना ज़्यादा मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा. तो एन इलेक्ट्रोमैग्नेट स्ट्रेंथ, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ कितनी है, मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी उसमें कितनी है, ये डिपेंड करता है कि उस आयरन की चारों तरफ, लोहे के चारों तरफ आपने कितना ज़्यादा वायर लपेट कर रखा हुआ है. और दूसरी चीज़, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज़ नॉट ए परमानेंट मैग्नेट. मतलब ये जो है ये परमानेंट मैग्नेट नहीं है. आपने एक लोहे की पट्टी ली है, उसके ऊपर बहुत सारी वायर लपेट दी है, वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया है, बहुत सारा काम वो कर सकता है. पर इट विल वर्क टिल द इलेक्ट्रिसिटी पासेस थ्रू इट. वो तब तक ही मैग्नेटिज्म रहेगा जब तक उसमें इलेक्ट्रिसिटी होगी. मतलब दैट इज द टेम्पररी मैग्नेट. वो उसकी जो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी वो कैसी है, टेम्पररी है. जब तक उसके चारों तरफ कॉइल है, वायर लपेटा हुआ है, जब तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, तब तक वो इट विल बिहेव लाइक ए मैग्नेट, इट विल वर्क एज इलेक्ट्रोमैग्नेट. पर जैसे ही ये सब खत्म हो जाएगा, उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी खत्म हो जाएगा. मतलब इट इज नॉट ए परमानेंट मैग्नेट, इट्स अ टेम्पररी मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी. उसमें जो टेम्पररी प्रॉपर्टी है. सो चिल्ड्रन, 2 थिंग्स आर देयर. एन इलेक्ट्रोमैग्नेट स्ट्रेंथ डिपेंड ऑन द टर्न्स ऑफ वायर एंड द अमाउंट ऑफ करंट. मतलब उस लोहे की बार के चारों तरफ कितना ज़्यादा वायर आपने लपेट कर रखा हुआ है, जितना ज़्यादा वाइंडिंग होगा, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वो लोहे का जो पीस है वो इट विल बिहेव लाइक ए मैग्नेट. और जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा, उतना ज़्यादा उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ज़्यादा रहेगी. और दूसरी चीज़, इट इज़ द टेम्पररी टिल द करंट फ्लोज थ्रू इट. It will not behave like a permanent magnet, it will not be a permanent magnet. Till the current flows through it, it will behave like a magnet. As you stop flowing current through it, it will not behave like a magnet. So these two things are there. An electromagnet is not a permanent magnet. Its magnetism lasts only while a current passes through its coil. Now, अब यदि ये जो हम कर रहे हैं कि हमने एक आयरन का बार लिया, उसके तरफ कॉइल कर लिया और इट बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट, तो इसका यूज़ क्या है, ये सब हम क्यों कर रहे हैं? वह एक लोहे का बार लेना है, उसके तरफ वायर को लपेटना है, फिर करंट पास करना है, तो क्या है? यस, देयर आर मेनी मोर यूजेस. आपने देखा होगा बड़ी बड़ी जो मल्टीज़ होती हैं वहाँ पर लिफ्ट होती है, या आपने ये भी देखा होगा कि जहाँ पर बहुत सारा कचरे का ढेर है, हिप ऑफ गार्बेज, और उस गार्बेज में कई प्रकार की चीज़ें रहती है. आपने देखा होगा घर का इतना सारा अलग अलग प्रकार का अटाला जो है हम जाकर बाहर जहाँ डालते हैं, वो वहाँ से कॉलोनी से इकट्ठा होकर जहाँ पर भी इकट्ठा होता है, उसमें हर प्रकार की चीज़ रहती है. उसमें कांच की भी चीज़ें होती है, उसमें लोहे की भी चीज़ होती है, अलग अलग मटेरियल की बनी हुई चीज़ होती है. अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इसकी क्या प्रॉपर्टी है कि दिस मैग्नेट विल अट्रैक्ट द थिंग्स मेड ऑफ मेटल. लोहे की बनी हुई चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. तो यदि बहुत सारा कचरे का ढेर है और उसमें से यदि आपको लोहे की चीज़ें अलग करना है, देन दिस इलेक्ट्रोमैग्नेट्स विल बी यूज. तो वो मशीनरी यूज़ करेंगे जिसमें मैग्नेट का जो है एक आयरन बार है, उसको वही है प्रोसेस, वही है कि उसके चारों तरफ जो कॉइल रहती है, और कॉइल में से जब करंट पास होता है तो ये लोहे का जो बार है ये इट बिहेव लाइक ए मैग्नेट. और जब ये मैग्नेट जैसा बिहेव करता है तो उस कचरे के ढेर के अंदर जितना भी लोहे की बनी हुई चीज़ें हैं दैट गेट्स अट्रैक्टेड. और इसके अलावा भी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बहुत सारे यूजेस है.
क्रेन्स विथ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज टू पिक अप आयरन ऑब्जेक्ट्स। क्रेन, कई बार जब एक्सीडेंट हो जाता है, गाड़ियाँ नीचे गिर जाती है तो क्रेन का यूज़ करते हैं। क्रेन का यूज़ करते हैं क्योंकि गाड़ियाँ अधिकतर लोहे की बनी हुई रहती है, तो नीचे गहराई से उनको ऊपर लाना, यदि नीचे 5-10 फीट नीचे गिर गई है तो क्रेन से उसको ऊपर उठाया जाता है। तो क्रेन से जो उठाया जाता है, क्रेन में क्या रहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट रहता है। तो वो इतना हैवी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, उसमें इतना हैवी मैग्नेटिज्म है कि आप सोच लो गाड़ी कितनी बड़ी रहती है, उसका वेट कितना होता है, उतने वेट को भी वो क्रेन जो है ऊपर खींच कर लेकर आती है। तो क्रेन्स में जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ करते हैं, जिससे कि आप जो है यू कैन पुल द ऑब्जेक्ट्स टू पुट देम डाउन। The current through the electromagnet is switched off. Electromagnets are also used for separating objects made of magnetic material from the heap of the garbage. Then a thin iron strip attracted by an electromagnet produces sound. अब कई बार जो है आयरन स्ट्रिप, मतलब लोहे की आपकी छोटी सी स्ट्रिप है, और यदि आप उसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं, इट विल बिहेव लाइक ए मैग्नेट, इट कैन प्रोड्यूस अ साउंड ऑल्सो, इट कैन प्रोड्यूस अ साउंड ऑल्सो। और यही है कि हमारे घर में जो डोरबेल होती है, घर के बाहर जो घंटी लगी हुई रहती है, बोलते हैं ना, कोई हमारे यहाँ आता है तो बाहर से स्विच ऑन करता है तो अंदर बेल बजती है, तो ये स्विच ऑन जब करता है तो बेल बजती है। तो ये बेल बजने वाला जो ये क्या है, व्हाट इज दिस प्रोसेस? सो दिस इज ऑल्सो बाय द बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट के कारण जब आपने आयरन बार के चारों तरफ कॉइल को लपेट के रखा है, तो जैसे ही उस कॉइल में से करंट फ्लो होगा, वो आयरन का बार जो है वो मैग्नेटिज्म जैसा वर्क करेगा, एंड इट विल प्रोड्यूस अ साउंड ऑल्सो व्हेन इट गेट्स जस्ट और अनदर ना, किसी के ऊपर टकराएगा, यदि किसी से जुड़ेगा, टकराएगा, तो इट विल प्रोड्यूस ए साउंड। So a thin iron strip attracted by an electromagnet produces a sound as well as it strikes against an electromagnet or a gong plays its path। और ये वाला जो है ये प्रॉपर्टी का यूज़ किया जाता है डोरबेल में। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड इन मोटर दैट ड्राइव फैंस, मिक्सर्स, वॉशिंग मशीन्स। तो हमारे घर की जो वॉशिंग मशीन है, मिक्सर है, इसमें सब में जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट का ही यूज़ करते हैं, और इस इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के कारण ही उसके अंदर की मोटर काम करती है, और जिसके कारण हमारे अप्लायंसेस काम करते हैं। दे आर ऑल्सो यूज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स इन फैक्ट्रीज एंड इन लार्ज जनरेटर्स। तो बड़े बड़े जो जनरेटर्स होते हैं, अब जनरेटर कितने बड़े होते हैं आपको पता है, एक जनरेटर से हम कितनी सारी लाइट लेते हैं। जहाँ पर पार्टियाँ होती है, बड़ी बड़ी पार्टियाँ जहाँ पर होती है, तो वहाँ पर जनरेटर की व्यवस्था पहले होती है कि यदि लाइट चली जाएगी तो क्या होगा, तो उस जनरेटर से इतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है कि हमारे पूरी सब दूर लाइट ही लाइट हो जाए। तो इतना हैवी करंट उसमें से पास होता है कि इट प्रोड्यूसेस हीट, इट गिव्स अस लाइट ऑल्सो। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स, जो फैक्ट्री में मशीन है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेट से काम करती है, और एट द सेम टाइम जनरेटर भी इससे ही काम करता है। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट हम जिसको बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब व्हेन द वायर इज कॉइल्ड अराउंड अ बार ऑफ आयरन, लोहे के बार की तरफ आयरन के ऊपर यदि हमने कॉइल को लपेट दिया है, एंड व्हेन वी अलाउ द करंट टू पास थ्रू इट, इट विल बिहेव लाइक ए मैग्नेट। सो द मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेट। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट डिपेंड ऑन द कॉइल्स ऑफ वायर अराउंड इट, उसके चारों तरफ वायर कितना आपने लपेट के रखा है, एंड द अमाउंट ऑफ करंट फ्लो थ्रू इट। जितने वायर के कॉइल्स ज़्यादा होंगे, जितना करंट ज़्यादा होगा, उतना इलेक्ट्रोमैग्नेट में मैग्नेटिज्म वाला प्रॉपर्टी ज़्यादा होगा। और दूसरी चीज़ कि इट विल बी ए टेम्पररी टिल द करंट फ्लोज थ्रू इट। When the current stops flowing through it, it will not at all behave like a magnet. And because of this property, these electromagnets are used at different places. उसमें है क्रेन्स में भी स्ट्रॉन्ग मशीनरीज को नीचे से ऊपर उठाने में, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में क्रेन का यूज़ करते हैं, और ये क्रेन में इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वर्क करता है, एंड वी यूज़ इट। इसके अलावा हीप ऑफ द गार्बेज में से मेटेलिक थिंग्स को सेपरेट करने के लिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज़ करते हैं। फिर हमारे घर में जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, मिक्सर है, मिक्सर है, उसके अलावा वॉशिंग मशीन है, फ़ैन है, इसके अंदर जो मोटर होती है वो मोटर भी इलेक्ट्रोमैग्नेट से काम करती है। और इसके अलावा जनरेटर में और मशीनरीज में जो बड़ी बड़ी मशीन्स चलती है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेट के कारण ही चलती है। और इसी इलेक्ट्रोमैग्नेट के कारण हमारे घर में जो डोरबेल है, जो बेल होती है हमारे घर में, उसमें जो स्विच ऑन करने से जो बेल की आवाज़ आती है, टकराने की आवाज़ आती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की ये भी एक प्रॉपर्टी है कि व्हेन इट गेट्स स्टक ओवर द अनदर इलेक्ट्रोमैग्नेट,
When a thin iron strip attracted by an electromagnet, इलेक्ट्रोमैग्नेट जब किसी thin आयरन की स्ट्रिप को अट्रैक्ट करेगा तो इट विल प्रोड्यूस ए साउंड, और जब ये साउंड प्रोड्यूस होगा तो उसके कारण आवाज़ आएगी, और उसका हम यूज़ करते हैं, इस प्रॉपर्टी का हम यूज़ करते हैं डोरबेल में। तो जो इलेक्ट्रिक बेल हमारे घर में यूज़ होती है उसमें भी प्रॉपर्टी कौन सी है, उस इलेक्ट्रिक बेल में जो हम प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं वो कौन सी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी। सो चिल्ड्रन, दिस इज अबाउट द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मतलब द फ्लो ऑफ करंट कॉजेज मैग्नेटिक इफेक्ट। The iron bar behave like a magnet because of the flow of current, that is the electromagnet. So this is about the magnetic effect of current, electromagnet and the uses of electromagnet. Now children, I will explain you about the electric bell. This electric bell in which we use the magnetic effect of electric current, electromagnet property का हम use करते हैं। Now you can see the diagram very easily. In this here one gong is there, then this is the iron strip on which we have wounded the coil. Up, whenever the current passes through it, what happen? This strip will get attracted towards this part, and when it gets attracted towards it, this will stuck to the gong, and when it will get stuck to the gong, it will produce a sound. So an electric bell is one of the most common application of an electromagnet. You can think of an electric bell as a device that has two switches connected in the electromagnet circuit. The first switch is outside the bell. इसमें दो स्विच होते हैं, एक तो बेल के बाहर होता है और एक बेल के अंदर होता है। जब बेल के बाहर से हम उसको ऑन करते हैं, ऑन करने से जब उसमें से करंट पास होता है, so when the current passes through it, as soon as the strip moves towards the electromagnet, करंट जैसे ही पास होगा ये स्ट्रिप जो है इसकी तरफ जो है it will get attracted towards it, it contact with the terminal T, it lost, ये इसको जो है जुड़ जाएगी, इसके साथ में एकदम जुड़ जाएगी। जैसे ये इससे जुड़ जाएगी, यहाँ से जो है ये वाला it will get the loss, the break, this breaks the circuit inside the bell, so the electromagnet stops attracting the iron strip. The strip returns to its original position and makes a contact with T. This closes the circuit and the electromagnet attracts the strip once again. This clever arrangement causes the strip to move back and forth many times second. तो जब करंट इसमें से पास होगा तो ये कई बार इसकी तरफ अट्रैक्ट होगी, और जब यह अट्रैक्ट होगी तो ये वाला पार्ट इससे टकराएगा, and when it gets stuck to this gong, it will produce a sound. तो इस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेट की अभी ये ऑफ पोजीशन है, अभी यहाँ पर करंट फ्लो नहीं हो रहा है। जैसे ही यहाँ पर जुड़ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास होगी, ये स्ट्रिप इससे टकराएगा, इसके टकराने से इट विल गेट स्टक ओवर द गोंग एंड द साउंड विल बी प्रोड्यूस। और इसमें एक इंटरनल स्विच है, एक एक्सटर्नल स्विच है, एक स्विच बाहर होता है, एक बेल के अंदर होता है, और इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं जिससे कि इट प्रोड्यूसेस द साउंड ऑफ द बेल। तो चिल्ड्रन, यू हैव टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ दिस बेल, just you have the practice of drawing the diagram and the working of this electric bell which work on electromagnet property. Which property? Electromagnet property. And this electromagnet property is nothing but the magnetic effect of current. So children, we have finished this chapter in different parts, and now you have to study it very carefully, you have to learn it, you have to be very strict, and I think you have to study it very well, and please pay attention on some of the points of this chapter so that you will not have any confusion about the resistance or current or the what is short circuit, what is electromagnet, what is heating effect, and how they depend on each other, how ones affect the others. So please study the chapter carefully.